معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر، ملک کی تعمیر و ترقی کھوکھلے نعروں اور دھرنوں سے عمل نہیں ممکن نہیں، ہمیں ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ اتحادی حکومت درپیش مشکل ترین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا منگلا پن بجلی گھر کے یونٹ 5 اور 6 کی ریفربشمنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، روس سے $372 فی ٹن کے حساب سے 4.5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری، گندم گوادر پورٹ کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی، درآمد ہونے والی گندم کی اضافی لاگت صوبوں سے وصول کرنے کی بھی منظوری۔ اتحادی حکومت نے بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ سابق نااہل حکومت کے باعث ملک کی معیشت تباہ ہوئی، عالمی برادری سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، معاشی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ روس پاکستان کو کم قیمت پر خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرے گا، روس کا وفد جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گا، توانائی سے متعلق نئے معاہدے کیے جائیں گے، روس کے پرائیویٹ سیکٹر سے LNG کے معاہدوں پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، آئندہ 10 روز میں ایران سے 2 ملین پاؤنڈ کی LPG پاکستان پہنچ جائے گی، وزیر مملکت مصدق ملک۔ ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں پر ریلیف دینے کی ضرورت ہے، سارک ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے طویل المدتی فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کو سیلاب کے بعد کئی چیلنجز درپیش ہیں، سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ $46 ارب تک پہنچ گیا ہے، حکومت نے غریب ترین اضلاع کے لیے $40 ارب مختص کیے ہیں، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ راولپنڈی کا تاریخی ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے نام، پاکستان 343 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکا، کھیل کے آخری روز پاکستان دوسری اننگز میں 268 رنز بنا کر آؤٹ، 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل، سیریز کا دوسرا میچ 9 دسمبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا، مقابلے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ Oh, is it carried? I think it. Oh, brilliant from Pope. Quatin. Oh, out surely. Yeah, given. Oh, close. Very close, given. A review, but given. The greatest ever captain at the bed of a pitch. Time ever. اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کی دوڑ، جاپان اور کروشیا جنوب اسٹیڈیم میں رات 8 بجے مد مقابل ہوں گے، برازیل اور جنوبی کوریا رات 12 بجے آمنے سامنے، دفاعی چیمپئن فرانس اور انگلینڈ کی ٹیمز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ Mbappe all of a sudden has room and uses it beautifully. Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Mbappe. Excited, but absolutely nowhere near it. And again, it's about the power. He got something on it. السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک کی تعمیر و ترقی محض نعروں اور دھرنوں سے نہیں، عمل سے ہی ممکن ہے، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، ہمیں ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی خدمت کرنی ہے۔ منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں پن بجلی منصوبوں پر توجہ نہیں دی گئی، اگر آبی ذخائر بنے ہوتے تو پاکستان کا توانائی کا درآمدی بل $27 ارب نہ ہوتا اور ملک کو سیلاب جیسی تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں ہمیں بتائیں گے مظہر عباس۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंगला पान बिजली घर के यूनिट 5 और 6 की रिफर्बिशमेंट का इफ्तिताह किया। अपग्रेडेशन से हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत में 35 मेगावाट इजाफा हो गया है। मंगला डैम के 1-4 और 7-10 यूनिट की रिफर्बिशमेंट पर काम जारी है। तमाम यूनिट्स की अपग्रेडेशन के बाद बिजली की पैदावार 1000 मेगावाट से बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए तनदही से काम कर रही है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमें सख्त मेहनत को शार और इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की खिदमत करना होगी। हिम्मत से काम लेना होगा और शबाना रोज मेहनत करनी होगी और अपना खून पसीना बहाना होगा लीडरशिप को। अवाम तो 75 साल वो अपना खून पसीना बहाते आए, कुर्बानियाँ देते आए, इजहार का मुजाहरा करते आए और कौमी यकजहती का मुजाहरा करते आए और उन्होंने कभी उफ नहीं की। 22 करोड़ अवाम ने, ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनकी बारी है कि उनको दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मंगला डैम को सदर अयूब के दौरे हुकूमत का अहम कारनामा करार देते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि माजी में मखसूस लाबी ने तवानाई के इस तर्ज की मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी। इस तरह के रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता, वो उसका अशरे अशीर भी ना होता। वो इन डैम्स में सस्ती पन बिजली बन रही होती और पूरा पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होता। जो हो चुका वो हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा और यानी तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा। रेफर्बिशमेंट मंसूबे में यूएसएड की तरफ से $1.5 करोड़ की ग्रांट, फ्रांस के तरक्याती इदारे के ताउन और वापडा की तरफ से 20 अरब रुपए मुख्तस करने के इकदाम को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में तवानाई के बड़े मंसूबों पर काम जारी है। पान बिजली मंसूबों में अमरीकी ताउन के मशकूर हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से बचाव के लिए नए आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने पान बिजली और काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई के हसूल के लिए हुकूमती इक़दामात को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। जनरल इलेक्ट्रिक हाइड्रो फ्रांस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि इनकी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। हम मुस्तकबिल में भी तवानाई के शोबे में अपना ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन वापडा ने बताया कि वफाकी हुकूमत माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई के हसूल में गहरी दिलचस्पी ले रही है। इस सिलसिले में वापडा नए पन बिजली मंसूबों की तामीर के साथ पहले से मौजूद मंसूबों की अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को मंगला पान बिजली घर के यूनिट्स की रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि $483 मिलियन की अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत ये मंसूबा 2026 में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे पन बिजली घर की पैदावारी सलाहियत 1000 मेगावाट से बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। रेफर्बिशमेंट के मरहले के दौरान 50 साल पुराने आलात और मशीनरी को तब्दील किया जा रहा है। सालाना औसतन 1632 मिलियन यूनिट्स पैदा होंगे और यूनिट्स की मियाद 35 साल बढ़ जाएगी। सस्ती और काबिल तजदीद तवानाई वक्त की अहम ज़रूरत है। पानी के वसाइल से साफ और माहौल दोस्त तवानाई के हसूल के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मंगला डैम। और अब कुछ बात करेंगे गंदम की दरामद के हवाले से। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से $372 फी टन के हिसाब से 4.5 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। रूस से गंदम 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक गवादर पोर्ट के जरिए दरामद की जाएगी। ईसीसी ने हुकूमती सतह पर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए 1,30,000 टन गंदम की दरामद की भी मंजूरी दी। कराची पोर्ट के जरिए 16 दिसंबर 2022 से 8 फरवरी 2023 तक दरामद की जाएगी। इजलास में CPEC IPPs के लिए रिवॉल्विंग फंड अकाउंट का नाम पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग अकाउंट तब्दील करने की भी मंजूरी दी गई। वजीर आजम चाहते हैं कि मुल्क का हर जवान बारोजगार हो, तमाम कारखाने चलें और कारखानों के लिए तवानाई का इंतजाम वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। दौरे रूस से वापसी पर मीडिया को उन्होंने आगाह किया कि रूस रियायती नरखों पर खाम तेल फ्राहम करेगा, जबकि मौसम सरमा में अवाम को गैस की पूरे प्रेशर से गैस फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से वकार हैदर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं।
अफवाहें, प्रोपोगंडा, झूठी खबरें सब दम तोड़ गईं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल हासिल करने का ऐलान कर दिया। रूस पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल भी कम कीमत पर मुहैया करेगा। ये भी बताया कि न सिर्फ रूसी हुकूमत बल्कि रूस की निजी कंपनियों से भी LNG हासिल करने के लिए बात करके आए हैं। जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया। समरी दोबारा पेश करता हूं। डिस्काउंटेड क्रूड, खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है और उसके अलावा पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय की है ताकि अब बात हवा में मुअल्लक ना रह जाए। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि मुल्की तरक्की तभी मुमकिन है जब गैस की खपत में 1 से 2% तक इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास गुज़श्ता साल की निस्बत नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इजाफी गैस मौजूद है। हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि वो जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं या जिस वक्त चूल्हों के अंदर गैस आने का प्रेशर इतना कम हो जाता है ये चूल्हे नहीं चलते, तो हमने ये कहा है कि देखें भाई आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी, और 6 से 9 बजे रात जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। ये हमने उनसे कमिटमेंट ली है जिसको हम रोज ट्रैक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान भी पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर 2 मिलियन पाउंड्स की गैस फराहम करेगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने कहा कि मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले कर रहे हैं क्योंकि मुल्की मईशत को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना $46 बिलियन है। मुतासरीन की बहाली के लिए अपने दस्तयाब वसाइल से भरपूर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। हालिया सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही की। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए भरपूर मौके फराहम कर रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक को आपस में मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशिश करनी होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि SDGs की तकमील के लिए दुनिया को मिलकर आगे बढ़ना होगा। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे को साथ लेकर चलें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। मेहनत और अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर की तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब की आफत से निपटने के लिए सारा मुल्क इकट्ठा हो गया। तमाम इदारों, सिविल सोसाइटी और हुकूमत ने भी मिलकर भरपूर काम किया। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में मुतासरीन सैलाब को हमारी इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हम मिलकर इसी जज्बे से पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मईशत की तबाहाली की जिम्मेदार नैब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मईशत की तबाहाली में नैब को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। नैब कवानीन की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एहतसाब का जो नाम निहाद सिलसिला चल रहा है, कई बार कह चुका हूं कि मुल्क की बका के लिए इस इदारे को ख़त्म करना चाहिए। ये सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि नैब के कवानीन की वजह से सरमायाकार खौफज़दा हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के बरवक्त इक़दामात के बाइस मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से बहरानों का सामना है जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इमरान खान की नाअहल हुकूमत के बाइस मुल्क की मईशत तबाह हुई। आलमी बरादरी से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन माशी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। और यहाँ कुछ बात करें, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI रहनुमा असद उमर को 7 दिसंबर को तलब कर लिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI को 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज अल्फाज कहने पर तलब किया गया है। अदालत ने उनके खिताब का वीडियो बयान और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिया। PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। समाअत के आगाज पर अदालत ने कहा कि पहले असद उमर की 26 नवंबर की जलसे में की गई तकरीर को देखेंगे। इस
जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज करते हुए अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मंडी बेंच की दरखास्त पर अदालत ने असद उमर से जवाब तलबी के लिए 7 दिसंबर को तलब कर लिया है। मामले खुसूसी फैसल करीम कुंटी ने कहा है कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पहली मरतबा ख्वाजा सराओं को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ख्वाजा सराओं को हर 3 माह बाद 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इस हवाले से अपने वीडियो पैगाम में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नादरा में बतौर ख्वाजा सरा इंदराज लाजमी है। किस्त की अदायगी डेटा की तस्दीक के बाद बजरिया बैंक की जाएगी। Of University of Varnia, ladies and gentlemen, our Polish guests, Polish diplomats, Assalamu alaikum. It's a pleasure to be here to recognize the fact that there is developing cooperation in the scientific area between Pakistan and Poland. Not only in the scientific area, but in the sense, the recognition of the fact that the world is changing. And as the world is changing, what can be the role of countries like Poland and Pakistan and possible cooperation between our two countries? As mention was made by about the fact that a bunch of outstanding Polish Air Force pilots joined Pakistan Air Force in the 50s. They became our heroes. They were responsible for setting up the Pakistan Air Force. And one of them, Air Commodore Turovitz, became the head of Suparco also. And if you go to some places in Pakistan, there are streets named after them. And probably, I believe very strongly, some of them married in Pakistan also. Some of the Polish pilots married in Pakistan also. And I suggested to the Polish ambassador that some work has to be done to trace those families as well, because that's a golden part of our Polish and Pakistan cooperation. Should not be forgotten. Personally, I had no idea about it until in the recent years I was exposed to that outstanding cooperation between Polish officers and the Pakistan Air Force. So thank you, Poland, for all that happened during that era. The topic of the conference, of course, is Pakistan-Poland relations and opportunities and challenges in the changing world. It is understood that things are happening. It's a kaleidoscope of change which is happening throughout the world, reshifting of alliances. We have always seen that. We have seen the reshifting of alliances in the last 300-400 years, 500 years. There was an effort made in Europe for peace, very significant effort made in Europe, and after the 30 Years' War and the 100 Years' War, an effort was made with the two treaties of Westphalia, where it was decided that the nation state is the future and that the power of the gun would rest with the nation state, and the borders of nation states would be recognized. That concept has stood the test of time for the last 300-400 years, 500 years. But today we are being exposed to another challenge where borders are becoming irrelevant in a number of situations. Borders are becoming irrelevant. And the force of the gun is also becoming irrelevant. There are there are a number of situations which I can point out. I believe that the institutions formed in consequence for what was the warring countries of Europe, which brought about peace, including an effort by the League of Nations and then an effort by the United Nations. These institutions are fossilized in some way, in the sense that they have not been able to recognize or accommodate the changing realities of the world. One of the biggest examples is environment. It's cross-border. It has nothing to do with a little to do with the nation states, but it is cross-border. And imagine the fact that Pakistan recently has been affected by floods.
To which Pakistan is making a statement that we are not even responsible for 1% of global warming, while we are suffering a consequence of the global warming which has happened in the developed countries. Now, the fact that this should be recognized, the fact that challenges are going to be cross-national, so the approaches have to become cross-national. So only don't limit yourself to global warming. The impact of environmental changes on animal life, for example, on the species, for example, on the insect species, for example. People have been talking about that 40% of insect species have been decimated with chemicals. The fishing industry, the fishes, there are huge changes. Without cooperation, the world, this earth, the mankind has stepped very strongly on this earth, and the attitude which was there in the 50s, for example, ladies and gentlemen, was the fact that there is a limitless supply of things. So therefore, make, manufacture, use, discard. That concept has put tremendous pressure on world resources. Not oil, not in that context, but the tremendous pressure on world resources. The wastage happening, the wastage of human effort which is also there. When you discard a product, for example, after, let me give you an example. In developed societies, it has been estimated that the products people buy, 60% of them are wasted within 2 months, although the product still has use within it. But it is discarded because the charm of the product has gone. The clothes we wear, used and discarded. So the world cannot withstand that kind of exploitation of the world. So people should cooperate, countries should cooperate, and that cooperation is dependent on thinking of the leadership in different countries. For example, between Poland and Pakistan. And I think we are on the right track when you hold a conference, when you talk about the new world order and possibilities of cooperation, because in Quran, God, Allah, says that, say that you would like to search for ilm. Go out and search for ilm. Rabbi zidni ilma. And that was Allah subhanahu wa ta'ala's direction to the Prophet. So when the Quran was being, the angel brought the verses of the Quran, so he was very eager to learn them. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, don't learn them, this is my responsibility, but call for the fact that you want ilm, you want knowledge. And that is something which Pakistan is yearning for. That is something. So the Muslim world has been relatively slower. The good cooperation with Europe happened in the, for example, Alhambra in Spain, when there was a renaissance in the Muslim world about ilm, also happened during the Ottoman reign. But we then saw a decadence in the Muslim world as far as knowledge is concerned. There was some revival, some isolations. When Napoleon conquered Egypt, for example, he brought, I think, 155 scientists with him to Egypt and started showing the European culture and European knowledge to Egypt. When the Meiji Revolution happened in Japan, and Admiral Perry parked his ships in Tokyo for the second year, the Meiji Revolution, they decided to go out to Europe. There were 4 delegations which went out. They changed their clothes, they adopted Western clothes, although for the Japanese culture it was very difficult to do. So these delegations put on a hat, put on ties, suits, changed their clothes and lived for 3 or 4 years. One delegation went to France, the other went to Canada, one went to United States, and the other went to England to learn European science and European customs. So Pakistan today wants to become a sponge of knowledge. Whether it is direct, and I must thank all the professors who have come here, because it is always important that what we say in Urdu, bil mushafa, or handshaking distance, I think human society will never become totally a zooming society. It will always have the importance of a handshake and coming across people. It will remain important. So I'm grateful and thankful to Urdu University for having organized this. But at the same time, a lot of cooperation can take place through exchange of knowledge.
नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पहली पोलिश इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दुनिया को जिन नए चैलेंजेस का सामना है और नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर साथ चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की साबिक सदर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन बेगम नजमा हमीद के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल रावलपिंडी में अदा की गई। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। बेगम नजमा हमीद का इंतकाल जुम्मे की शब रावलपिंडी के होली फैमिली हस्पताल में हुआ। बेगम नजमा हमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब की बड़ी बहन और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की खाला थीं। रावलपिंडी में बेगम नजमा हमीद के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात समेत अमायदीन इलाका, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पैदाइशी मुस्लिम लीगी कहलाने वाली मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की साबिक सदर नजमा हमीद जमात में सतून की हैसियत रखती थीं। वो 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून की सेनेटर रहीं। बेगम नजमा हमीद रावलपिंडी में पार्टी की पहचान थीं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा करने वाले और पहले मुंतखब जमहूरी सदर नेल्सन मंडेला की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने अपनी कौम के साथ पेश आने वाले नस्ली तासुब और नारवा सलूक के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। 1993 में उन्हें सबसे बड़े अवार्ड अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत का चिराग जलाने वाले आलमी रहनुमा नेल्सन मंडेला की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। रंग और नस्ल परस्ती के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में तवील जद्दोजहद करने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। सियाह फामों के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले मंडेला ने जेलें भी काटी, अपनों से दूरी का गम भी झेला और फिर बिलाखिर वो वक्त भी आया जब वो सन 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और सियाह फाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैदे तन्हाई काटी। नेल्सन मंडेला की अमन की कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें नोबल अमन इनाम, सहारोफ अवार्ड, यूएस प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हुए। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रज़ाकारों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद रज़ाकारों की खिदमात का एतराफ़ करना और उनकी बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। मज़ीद तफसील हमें बताएंगे मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। हर साल 5 दिसंबर का दिन उन बाहिम्मत रजाकारों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में शहरी और दही इलाकों में कौम की बेलौस खिदमत की खातिर अपनी जिंदगियां वक्फ कर रखी हैं। शऊर और आगाही के फुकदान और अदम तवज्जही के बाइस हादसात और सानयात की शरह में इजाफा हो रहा है। 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला हो या 2010 का सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों और बारिशों के तवील स्पेल के नतीजे में बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के मुतासरा इजला में रेस्क्यू और बहाली के कामों में मुल्क भर से रजाकारों और तंजीमों ने भरपूर साथ दिया। हमें अल्लाह के मखलूक के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। कौमों की तरक्की दरअसल रजाकारों की ही मरूने मिन्नत है। ये अपनी जाती मुसफ़ियात को तर्क करके नस्ली और इलाकाई तहस्सुबात से बालातर होकर इंसानी खिदमत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मुल्क चाहे तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, इसकी समाजी और माशी तरक्की में रजाकारों का किरदार अहम होता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। जी नाज़रीन, आज रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसी हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सरफराज कमर डाहा। आप चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज कमर डाहा साहब, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। आज रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से आपने मदऊ किया, तो मुझे अच्छा लगा कि जी
सरफराज साहब, मैं ये बड़ा ही अहम दिन है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में आता है और 58% जो हमारे मुल्क में इस वक्त रज़ाकार काम कर रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं ख़ास बात करूं तो बड़ी खिदमात रही हैं आपके रज़ाकारों की, सैलाब के हवाले से हो या दीगर मामलात पेश रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यकीनन हमारे इस वक्त 8 लाख से ज़्यादा स्काउट्स, मैं सब वो ये 8 लाख का फिगर वो दे रहा हूँ जो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, ये वॉलंटियर तंजीम के जो रुकन है। और जो स्काउट तंजीम की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी रज़ाकार तंजीम ये स्काउट मूवमेंट ही है, जिसके 6 करोड़ से ज़्यादा रज़ाकार मेंबर हैं। और यकीनन आप जानते हैं, चाहे फ्लड हो, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे पनाह गुज़ीनों जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी सेटलमेंट हो, हमारे स्काउट हर जगह हरावल दस्ते का काम करते हैं। 2010 के फ्लड में आपने देखा कि भी स्काउट्स जो गांव-गांव की सतह पे मौजूद हैं हमारे ये रज़ाकार, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी फ्लड आया हुआ था जो पूरे मुल्क में 60% से ज़्यादा हमारा मुल्क पानी में डूबा हुआ था। हमारे स्काउट्स ने जो दूसरे रेस्क्यू जैसे 1122 के इदारे या दूसरे इदारे हैं उनके साथ मिलके अपनी जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज थी उनका एक तो जो पहला रिस्पांस था इमरजेंसी रिस्पांस उसमें काम किया, और उसके बाद अभी भी हम जो उनकी रिहेबिलिटेशन है उसमें बढ़ चढ़ के हमारे स्काउट्स, हमारे रज़ाकार उनके गांव की सतह पे जाके उनके साथ रिहेबिलिटेशन में काम कर रहे हैं। सरफराज साहब, ये बड़ा एक नोबल कॉज है खिदमत करना और खिदमत खल करना, ख़ासतौर पर उन लोगों की जो मुश्किल में फंसे होते हैं, जिनके हालात नॉर्मल नहीं रहते, उनकी मदद करना। क्या तरीक़ाकार है पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का? बहुत सारे लोग, आपने कहा कि बच्चे हैं जो कि 8 लाख रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा भी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में नौजवान मौजूद हैं और वो जो जज्बा रखते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक ज़रिया चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन का क्या ज़रिया है? फिर आप क्या उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं? कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है? कुछ इस हवाले से आगाह कीजिएगा। ये हमारे, मैं आपको बताऊं कि भी बॉय स्काउट 3 सेक्शन है। एक शाहीन सेक्शन है, फिर बॉय सेक्शन है, फिर यूनिवर्सिटी की सतह तक हम रोअर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं कि हर जो भी स्काउट बनता है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो कोर्स है उसने ज़रूर उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके बाद सिविल डिफेंस का, और हम स्काउट्स अपने आप को कहते हैं, आपको वो पता ही होगा, हम कहते हैं कि भी खेल खेल में हमने सीखना होता है, एडवेंचर भी चल रहा होता है और सीखना भी होता है। हम स्काउट्स के जो बानी तहरीक लॉर्ड बैडन पावेल है वो कहते थे कि भी जो स्काउट्स के लिए जो छत है वो नीला आसमान है और नीचे जंगल है, और इस जंगल में और कोई छत नहीं है। तो हमने अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो तरीके ढूंढने हैं कि भी खाना भी खुद पकाना है, शेल्टर भी प्रोवाइड करना है, अपने आप को शेल्टर भी करना है, और कोई जंगल में जो जंगली जानवर हैं सांप के काटने का, ये वो चीज़ें हैं जो हम हर स्काउट सीखता है कि भाई कैसे सांप के काटने से कोई चोट लग जाए तो उसकी तिब्बी इमदाद कैसी है। और इसी तरह हम अपने स्काउट्स को एडवेंचर करवाते हैं, जैसे विंटर पे हाइक 100 किलोमीटर की हाइक विंटर में, या डेजर्ट में 100 किलोमीटर वॉक जो है ना वो स्काउट्स करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्काउट जो है ना सीखता है कि भाई 100 किलोमीटर पैदल चल के जो मुश्किलात जंगल में, रेगिस्तान में या विंटर सीजन में स्नो हाइक के दौरान जो आती हैं, तो अपने आप को सरवाइव कैसे करना है। और जब ये वो इस तरबियत का ये फ़ायदा होता है, कोई जो नागहानी सूरत हाल किसी मैन मेड हो या नेचुरल डिजास्टर हो, तो ये हमारे स्काउट हरावल दस्ता का रोल है। सरफराज साहब, चूंकि हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में हमारे नौजवान इसमें शिरकत कर रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, गर्ल्स गाइड एक पैरेलल तंजीम भी मौजूद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे, जैसे सैलाब का आपने जिक्र किया है, बहुत सारी खवातीन अफेक्टेड हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गर्ल्स गाइड की तंजीम उस तरह से अगर नहीं रीच आउट कर रही, तो क्या बॉय स्काउट में ऐसा आपका सेक्शन है कि वहाँ पर खवातीन के मसाइल हल करने के लिए या उनसे गुफ्तगू करने के लिए भी, हमारे देही इलाकों में रिवायात भी है ना कि हम खवातीन से उस तरह से अजनबियों से बात नहीं की जाती, तो इसके लिए कुछ सेक्शन है आपके अंडर? नहीं बिल्कुल सर, सेक्शन क्या, हम ये हमारे लिए ओपन है। गर्ल गाइड अलहदा एसोसिएशन तो है, लेकिन गर्ल स्काउट्स की रजिस्ट्रेशन हमारा ये स्काउट एसोसिएशन ही करती है, और गर्ल स्काउट्स हैं
وہ ابھی بہت زیادہ تعداد میں ہمارے اسکاؤٹ سیکشن میں آ رہی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو موجودہ صدر پاکستان ہمارے چیف اسکاؤٹ ہیں وہ خود اسکاؤٹ رہے ہیں, اور جو موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہے وہ خود بھی اسکاؤٹ رہے ہیں. ہماری 2019 میں جو نیشنل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ ہم نے رجسٹریشن کا, گرلز اسکاؤٹ کے رجسٹریشن کا بھی عمل جاری کر دیا ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ میں اگر کہوں کہ بھی بہت زیادہ تعداد جو گرل اسکاؤٹ کی ہے رجسٹریشن, اس میں وقت کے ساتھ وہ ہمیں آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہے جو کہ مشکل وقت میں وطن عزیز کے کام آ سکے, اور اسی جذبے اور اسی لگن اور اسی اعتماد کی ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ سرفراز قمر ڈہا صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, نامور مزاح نگار, افسانہ نویس, مترجم اور شاعر پطرس بخاری کو ہم سے بچھڑے 64 برس ہو گئے ہیں, مگر ان کی تحریریں آج بھی ادبی محفلوں کی رونق سمجھی جاتی ہیں. ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے آنے والے بلیٹنز میں. ان کے حوالے سے خصوصی رپورٹس تیار کی جائیں گی. ملکی ثقافت اور قومی ورثے کے رنگ لیے لوک میلہ اسلام آباد میں ختم ہو گیا. قومی سطح پر میلے کی بہترین کوریج کا ایوارڈ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. ملک کی ثقافت اور قومی ورثے کے سب رنگ لیے قومی ثقافتی لوک میلہ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا. ایوارڈز کی تقسیم کی تقریب لوک ورثہ اوپن ایئر تھیٹر میں ہوئی, جس میں دستکاروں اور فنکاروں کو نقد انعامات سے نوازا گیا, جبکہ تمام صوبائی کلچرل ڈپارٹمنٹس کے نمائندوں کو شیلڈز بھی دی گئیں. قومی سطح پر میلے کی بہترین کوریج کا ایوارڈ رواں سال پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا گیا. لوک ورثہ ایوارڈز پی ٹی وی نیوز پر میلے کی بہترین رپورٹنگ کے ذریعے پاکستان کے ورثے, ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کرنے پر پی ٹی وی کے نام کیا گیا. وزیر اعظم کے مشیر برائے ثقافتی ورثہ انجینئر امیر مقام کی کاوشوں اور خصوصی دلچسپی سے میلے کا کامیاب انعقاد ممکن ہوا. کراؤڈ کا رسپانس از سو گڈ, اتنی انرجیٹک عوام یہاں پر آئی ہوئی ہے, چاہے پشتون ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, ایوری بڈی از انجوائنگ سو مچ. 10 دن تک یہ سارے پھول, سارے رنگ آئے تھے ہر صوبے سے, گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا, پنجاب, ہر علاقے سے آئے تھے, اور انہوں نے ہماری زندگی میں مزید خوشیاں گھول دیں. ایک اچھی وہ کوشش ہے, ہر سال گورنمنٹ کرتی ہے اور کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے نا لوگوں کا مورال بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے اور انکریجمنٹ ہوتی ہے. ہر کلچر کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اور ایک تو یہ بات یہ ہے یہاں پہ یہ اویئرنیس بھی بہت ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے ہر کلچر کے بارے میں, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو ان کلچرز کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. تو اور بھی فی الحال میں 3 جو پاویلین میں ان میں گئی ہوں, سندھ میں, کے پی کے میں اور یہ پنجاب میں, مجھے تینوں بہت اچھے لگے ہیں. ایوارڈ کی تقسیم کے تقریب کے دوران معروف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور لوک گیت بھی پیش کیے. میلے میں تمام صوبوں کے علاقائی روایتی کھانوں اور دستکاریوں کے اسٹالز لگائے گئے تھے, جبکہ علاقائی رقص اور میوزیکل شوز بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے. 10 روز تک جاری رہنے والے قومی ثقافتی میلے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں کی ثقافت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا. یاسر حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور 5 دسمبر کو دنیا بھر میں ورلڈ سوائل ڈے یعنی مٹی سے محبت کا دن منایا جاتا ہے, جس کا مقصد مٹی کے اندر افزائش پانے والی معدنیات کا تحفظ بھی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں انسانی وجود قیام پذیر ہے, جبکہ مٹی سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے کیونکہ وہ خود مٹی ہی کی پیداوار ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ 95% ہماری غذا مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے, جبکہ 18 قدرتی کیمیکل اجزاء میں سے بھی 15 مٹی ہی سے حاصل ہوتے ہیں, جبکہ زراعت کی پیداوار بھی 2050 تک 60% غذائی اشیاء کو پورا کرے گی. ان تمام حقیقتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہماری زمین بالخصوص مٹی کی اہمیت سمجھنا ہے. 2022 کے مٹی کے عالمی دن کا عنوان ہے کہ مٹی وہ جگہ جہاں سے ہماری غذا ملتی ہے.
जबकि इसके तहत ज़मीन को बंजर होने से बचाना, ज़मीन पर पानी का सही पहुँचाना और नशीबी इलाकों में ज़मीन को पानी से बचाना और ग़िज़ाई अज्जा में कुदरती नमकियात, प्रोटीन, फैट समेत कुदरती अज्जा को इसकी असल शक्ल में बहाल रखना है। बागबानी भी मिट्टी की हिफाजत और कुदरती हुस्न की अहम पहचान है, जबकि इस दिन की मुनासबत से ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है। दुनिया भर में इस दिन की मुनासिबत से तकारीब मुनक्किद की जाती हैं, जबकि बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी मिट्टी से उनसियत में मुख्तलिफ किस्म की तकारीब में शिरकत करते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि सनअती इनकलाब ने इंसान की ज़िंदगी आसाइशों से तो भर दी है, लेकिन इसका खमियाजा ज़मीन पर बेजा केमिकल स्प्रे से पैदावार का बढ़ाना है, जिसमें ग़िज़ाइयत का अंसर कम होता जा रहा है, और इसके लिए हम सबको मिलकर अपने माहौल और मिट्टी की हिफाजत के लिए काम करना है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और सर्दियों और खुश्क मेवे का जिक्र ना हो ये नहीं हो सकता। कोयटा के खुश्क मेवों की मार्केट का शुमार मुल्क की सबसे बड़ी मार्केट्स में होता है। महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। चलगोजे की अगर बात करें तो चलगोजे की आसमान से बातें करती कीमत पर लोग सिर्फ इस फल को देखते या कीमत पूछने तक ही महदूद होकर रह गए। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है जुलेखा खान ने, आइए देखते हैं। ये है कोयटा की ड्राई एक साल पहले तक कोयटा में चलगोजे 3,000 रुपए किलो मिल जाते थे, लेकिन अब ये 9,500 में भी बमुश्किल दस्तयाब है। गरीब तो क्या मिडिल क्लास भी अब इसे खरीदने का तस्वुर नहीं कर सकती। चलगोजे जो है 1,000 रुपये ज्यादा महंगे हो गए पिछले साल से, बल्कि 10% क्या आप ऐसे समझे 100 गुना से भी ज्यादा महंगाई होगी। ताजरों का कहना है कि चलगोजे 9/11 के बाद महंगा होना शुरू हुए। तोरा बोरा अफगानिस्तान में पैदावार अब 30% भी नहीं रही, और जो है इसका ज्यादातर हिस्सा चीन और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट होता है। चलगोजे की टोटल मसलन पैदावार है वो थोड़ी सी कम है, डिमांड के लिहाज से कम है। इस वजह से हर साल इसकी कीमत अक्सर और बेशतर महंगी ही होती है। चलगोजे की कीमत अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो शायद आइंदा नस्लें तस्वीरों से ही जान सकें कि कोई खुश्क मेवा चलगोजा भी था। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। कोई खुश्क मेवा जो है वो एक चलगोजा भी होता था, अब ऐसा सोचने पर मजबूर हो गया। बहरहाल कुछ सेहत की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर, नौशहरा, मोहम्मद, बाजोड़, सवात, डेरा इस्माइल खान, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स पर मुश्तमिल 7,681 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 6,610 मोबाइल टीमें, 546 फिक्स टीमें, 481 ट्रांजिट और 44 रूमिंग टीमें शामिल हैं। मुहिम के लिए सिक्योरिटी के लिए 20,152 पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई है। जनूबी अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी की वजह से रवां साल 20 बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ न्यूज़ एट 6 शो में हमारा जो दीगर स्टोरीज हैं उस पर बात का सिलसिला ख़त्म हुआ है। एक ब्रेक के बाद कुछ बात होगी पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की।